My dear friends, was I supposed to make this video? I don't think so. But actually, the child in me made me present this video to you. Well, no shame, no regrets, and no guilt of presenting you all on the behalf of myself to tell you actually this thing is happening. Now, do you remember the case of नीट एग्जामिनेशन जिसमें मतलब मोस्टली पेपर पहले से ही सेंटर्स में लीक हो गया था. द सेम थिंग इज हैपनिंग विथ फिजिकल एजुकेशन नाउ. Who is responsible for this? My fight is not to take a click back on this video. No, my fight is not with anyone. My fight is with those people who actually do such kind of things and they think that they can be saved by the courts, the judiciary, the police, the people. Like, at what extent you can drop leaking papers for the sake of what? Leaking these questions for the sake of what? Just to score better. Now I'm not first of all, this is the disclaimer, I'm not hating anyone for doing this thing. Okay, your life, do everything you want to, but I have this question in my mind: who is responsible for this irresponsibleness? A child studies so hard for a competitive exam, and what happens? Suppose you don't want to eat and you have a full 5 course meal in front of you. What would you do? Sometimes you will be like, oh, maybe taking a bite won't hurt. And the same thing is exactly happening in our education system. We say our education system is so miraculous, wonderful, and I can agree on that. India has like diverse topics. We have a lot of knowledge about the things, about technologies. Okay, in the state of developing. What about the education of children? I've seen a lot of videos, and I was supposed to make a video of about actually how the youth is putting himself or herself towards competition of examinations, and even the people who are aged 22, 23, 24, they are giving examinations. And tell me, where is the cut of those examinations? People give entrance exams, CUT exams, people give NDA exams, people give a lot of CLAT exams. Where is the, what should I say, the percentile score a student needs? बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है. मुझे बहुत हंसी आ रही है कि मतलब एक ये बात सिर्फ एक 12th के पेपर की लीक होने की नहीं है, ये बात है कि ये हो रहा है एंड देयर इज़ नो वन टू टेक अकाउंटेबिलिटी. नीट का केस ऐसे ही हुआ था, देयर वाज नो वन टू टेक द अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, रिजर्वेशन के बेस पर, कास्ट के बेस पर एग्जामिनेशन से मार्क्स दे दिए. एंड नाउ व्हाट अबाउट दिस? डू यू नो द अमाउंट ऑफ करेज इट टेक्स टू पुट yourself to speak about the things, to tell people that this thing is wrong, this thing is right? Some of the students are purchasing, some of the students are studying day and hard. Where is the justice? People say smart work, people say do hard work. I am asking, where is the justice? Now teachers are making videos about this. Oh, paper got leaked, what about our efforts? I'm asking, what about the kids? What about the kid who actually studies day and night? I'm not saying I study day and night for this examination, no. Maybe I just dedicatedly give my 8 to 10 hours per day for like 4 or 5 days straight for this examination. But the video is the appeal to all the students who feel like we are giving this much, वी आर डूइंग एवरीथिंग. मतलब बच्चे 2-3 साल रह भी जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ये तो सिर्फ एक फिजिकल का पेपर है. क्या किसी को सच में लगता है कि अगर मतलब ये 16 पेपर की शीट्स लीक हो जाएंगी और कोई तुमसे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेगा तो ये 16 पेपर की शीट उसका फ्यूचर डिफाइन कर सकती है? एंड यू नो व्हाट इज़ द सैडेस्ट रियलिटी? आई वॉज चेकिंग द कमेंट्स. ठीक है, बच्चे क्या लिख रहे हैं, मैं 3,000 रुपये भी दूंगा, फिजिक्स का पेपर लीक कर दो. काश इससे तो अच्छा फिजिक्स का पेपर लीक हो जाता. पता है, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता. सब स्मार्ट वर्क, सब ऑनलाइन पढ़ते हैं. टीचरों की कोई वैल्यू ही नहीं रही है. क्या तुमने कभी कहीं देखा है कि कोई बच्चा घर में बैठ के पढ़ रहा है और वो अपने टीचर की तारीफ़ करता हो? कोई देखा है कि स्कूल से जा कर के कोई ट्यूशन ना ले रहा हो, बस जो टीचर पढ़ा रही है 1-on-1 जो इंट्रैक्शन हो रहा है बस उससे पढ़ रहा हो? और अगर हम मतलब इस चीज़ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाएं कि इस चीज़ के लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो हमारे पास कोई आंसर ही नहीं है. अभी हमें पता भी नहीं है, यू नो दैट्स हाउ दिस सोशल मीडिया वर्क्स, कि हमें पता भी नहीं है एक्चुअली ये 16 शीट्स ऑफ पेपर एक्चुअली लीक हुई भी है या नहीं हुई है. हम फिर भी इस चीज़ का इतना बड़ा हवा बना रहे हैं. हर एवरी टीचर इज़ पोस्टिंग, इवन वो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी है नहीं. मैंने
एक चैनल है डिप्रेस्ड बॉय, आई थिंक वो मेरे उसमें आता है ऑडियंस वॉचेस में। आई हैव बीन स्टॉकिंग दैट चैनल फॉर अ वाइल। क्लिक बेट, वो उसने लड़के ने वीडियो डाली और वो उस ग्रुप में भी था जिसमें मतलब वो लिंक थी, तो वो एक्सपोज कर रहा है डीप डाउन, कहीं ना कहीं वो भी तो एक इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। और डीप डाउन टीचर्स भी कहीं ना कहीं, नो हेट टू दैट पर्सन, एक्चुअली मैंने उसकी सेकंड वीडियो भी देखी जिसमें वो बता रहा है कि 100 में से 90 ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको ये पेपर मिलेगा भी नहीं। मैं कहती हूँ वो 10 स्टूडेंट्स के बारे में, कि जिनको पेपर मिलेगा वो 10 स्टूडेंट्स कितने लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, और कहाँ तक गवर्नमेंट रोक सकती है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमें इतना सिखाया जाता है अभी। मतलब 1-2 हफ्ते से ऐसा चला है, इफ़ यू कॉल समवन तो ये कहता है साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए फ्रॉड हो सकता है, इस नंबर पे कॉल करें। यहाँ कौन सी सिक्योरिटी है? और तुम जस्टिस मांगने जाओ, इतने सारे केसेस होते हैं इंडिया में, ठीक है, इतने सारे सेक्सुअल केसेस होते हैं इंडिया में, तुम इस पेपर के लिए जस्टिस मांगने जाओ और अगर तुम्हें जस्टिस मिल जाए तो मुझे बता देना। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट स्प्रेडिंग एनी मिस इन्फॉर्मेशन, नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियल। अब मैं सोच रही हूँ, पढ़ रही थी मैं BST पढ़ रही थी, सुबह से पढ़ ही रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ मैं भी ना पढ़ूँ, मैं क्यों पढ़ूँ भाई, कहीं ना कहीं से तुक्का लगा के मुझे भी मिल जाएगा पेपर, मुझे भी मिल जाना चाहिए। जब वो 10 बच्चे आ रहे हैं उस कैटेगरी में, पर मेरे पास पैसे नहीं है पेपर खरीदने के। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पेपर की प्रिपरेशन छोड़ करके स्क्रोलिंग, भाई यहाँ से ग्रुप मिल जाए, यहाँ से इसकी लिंक मिल जाए। और जो एक्चुअली ये काम कर रहा है उसका मैकेनिज्म देखो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू फील समथिंग लाइक, मुझे ये ह्यूमरस वीडियो बनाना था, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई कैन नॉट मेक दिस वीडियो ह्यूमरस, क्योंकि ये एक सोशल प्रॉब्लम है जो हम सोल्व भी नहीं कर सकते। मैं बस चाहती हूँ कि जो ये सोच रहे हैं ना कि पेपर लीक हो गया, इससे पेपर कैंसिल हो जाएगा और शायद ये 16 पेजेस ऑफ पेपर जो है ये दोबारा से आपको देने पड़ेंगे, या जो टीचर्स वीडियोस बना कर बच्चों को बता रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम देखो अब सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन जो मेजर केसेस है, अभी एक केस यहाँ हुआ है नेपाल में, कहीं ना कहीं अभी एक इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे केस हुआ है, कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अब, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस है। और क्या पता ये कोई स्कीम भी हो सकती है। जब नीट चला था उस टाइम पे इलेक्शंस थे, तो इलेक्शन से ध्यान हटाने के लिए माय आइडियोलॉजी जहाँ तक मुझे लगता है नीट का स्कैम हुआ था। अब तुम खुद देख लो अब तुम इसमें करोगे क्या? कोई सोचेगा चलो ग्रुप मिल जाएगा, कोई सोचेगा चलो अभी वेट करते हैं खबर सच्ची है भी या नहीं, अब कोई सोचेगा चलो देख लेंगे, अगर सच्ची हुई तब ठीक, ना हुई तब ठीक। और कोई तो पढ़ेगा ही नहीं, कोई तो अब ये सोचने वाला है कि फिजिक्स का एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो जाएगा। ये फिजिकल एजुकेशन है, कोई मतलब ठीक है हमारे मतलब टॉप 5 सब्जेक्ट्स में ऐड होता है, इसको कोई इतना खास सीरियस लेता भी नहीं है। पता है, अगर तुम्हें लगता है ना कि अपना टाइम वेस्ट करके तुम सोच रहे हो कि हाँ हम पढ़ेंगे, हम मज़े करेंगे, हम नहीं भी पढ़ेंगे तब भी मज़े करेंगे, मैं सच बताऊँ पढ़ लो, कुछ नहीं जा रहा। मैं भी पढ़ने जा रही हूँ अब, पर बहुत ही डम बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत फेल है। पैसों से कौन कहता है ये, हम ही कहते हैं, और कौन कहेगा कि पैसों से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। बताओ, अब पैसों से अगर तुम एक क्वेश्चन पेपर खरीद सकते हो और वो क्वेश्चन पेपर तुम्हारी मार्कशीट में जाएगा, तुम्हारी परसेंटेज बढ़ाएगा। और ये बहुत बिटर फैक्ट है कि आपकी ये जो एक शीट होती है ना, मार्कशीट, ये आपका फ्यूचर, आपका स्टेटस, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड और आप कितने इंटेलेक्चुअल हो इसको डिफाइन करता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब मैं बोलूँ क्या, तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। ठीक है, पढ़ लो and we will see how far this is going to be. Sometimes I literally feel like this is just a kind of distraction. अब हम सब के सब देखो ये कितना मतलब कितनी बड़ी एक रैट रेस है ये। अब हम सब के सब कहाँ जाएंगे, इसके पीछे टीचर्स वीडियोस पे वीडियोस डालेंगे, बच्चे अपने रिएक्शंस देंगे, अपने ओपिनियंस देंगे। अब तक जिसने मतलब इसका एक रिएक्शन वीडियो बना के भी नहीं डाला था ना, 4 राय तो वो तुम्हें देगा, पेपर खोल के दिखाएगा, थंबनेल लगाएगा एंड देन वो दिखाएगा कि हाँ ठीक है ये हुआ, हमने ये पेपर दिया, इसमें ये आया, हाँ ठीक है। इस बार ऐसा हुआ कि पेपर का थोड़ा सा हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड थोड़ा अप था, मतलब थोड़ा साइंस वाला पोर्शन ज़्यादा था, पार्टीशन जो था थोड़ा अनफेयर था, मतलब केस स्टडीज़ में नहीं थे वो आंसर, क्योंकि मैं ये एनालाइज़ किया, मैं दे के आई हूँ इस पेपर को अभी 2 दिन पहले। पर मैं सच बताऊँ, अपने एग्ज़ाम्स का जो ये हमारा सीज़न होता है ना, इसमें अप एंड डाउन्स होते हैं। अब कुछ सोचेंगे चीटिंग करके जीत जाए। मेरे बराबर में जो बैठा था बच्चा, लड़का,
वो दूसरे स्कूल का था। मैम ने उसको इतनी बार डांटा कि मैं तेरी कॉपी पे चीटिंग लिख दूंगी। उसने एक भी बार मैम की शर्म नहीं करी। तो तुम सोच लो कि अगर एक पेपर लीक हो भी रहा है तो इसका क्या ही फ़र्क पड़ेगा? क्या तुम्हें लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा तो हम सब यहीं हैं, देख लेंगे। एंड आई फील लाइक आई कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू क्रिएट सच काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड लेट्स सी हाउ फार इट गोज़। लेकिन वन थिंग आई एम टेलिंग यू बिफोर पॉजिंग दिस वीडियो, डोंट फॉल फॉर आउट दीज क्रैप्स, ठीक है? जो 12th में नहीं भी है अब वो भी इनके बारे में बोलने आएगा, ठीक है? जो टीचर्स पढ़ा नहीं रहे हैं अब वो टीचर्स भी इनके बारे में बोलने आएगी। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी अपने कुछ और नई चीज़ें लगाएगी और शायद रिस्पॉन्स भी ना दे या शायद इसको इनवैलिड ठहरा दे। जो हमारा ये जस्टिस का जो सिस्टम है ना, या इसको टॉपिक को छेड़े बिना हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ पढ़ने हैं, हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें अगला एग्ज़ाम ऐसे ही देना है। और अगर दोबारा पेपर हो भी गया सो व्हाट कैन यू चेंज? नथिंग कैन बी चेंज्ड, नथिंग, यू कैन नॉट चेंज इट, यू सीरियसली कैन नॉट चेंज इट।